Welcome, ladies and gentlemen. Today we are here at National Masters Men and Women Classic and Equal Powerlifting Championship 2026, being held right here in Chhatrapati Sambhajinagar. This championship has brought some of the finest powerlifters of India together, along with some distinguished officials who have played a very pivotal role in the growth of powerlifting in India. Come on, let's talk to them. Today we have with us the man who has brought many laurels to the country, the man who has claimed the title of Strongman of India and also has been awarded with Arjuna Award for his commendable performance in sports. Yes, I'm talking about Mr. PJ Joseph, who is the Secretary General of Powerlifting India. It's the last so many years we are conducting I think it's the 42nd Master National Championship. Last year, total participants is near about 487. That's great. Yeah. Now this year championship was 587. I think too much improved. Do you see your young competitive reflection over here, or the sport has completely transformed in your opinion? In our old masters is very energetic. It's a 40 to 50 years is the master one competition. Some more attractive. Attractive means is the heavy, more heavy, near about open category. And 50 to 60, last year, I think so many records is created here. So they are working, they are practicing, they are improving. And 60 to 70, that is a master 3. 70 to 80 or 80 plus. That is the master 4. I am also the master 4. Okay. This is the 53rd year. 53rd year. I'm in the sports field. 75 is my first competition. You've come a long way. Yeah. So the records are being broken every day in any Yeah. sport it be. What, according to you, is the true legacy that every student, every player must strive to leave behind, other than just breaking the records? Yeah. It's normally their thing. They want to create the record, and my name will come in the record in the website. You went on to get the Arjuna Award, which is such a prestigious award. Every man dreams of getting it, every woman as well. So, what, according to you, is the perfect advice for them today? In my time, that time there is no protein powder, that nothing. Here, that time we getting only from the food oil, All natural. natural food oil. And only for additional supplements is okay, but don't go steroids. That's I don't like. Some increasing in the doping. I want dope-free championship. Totally against for doping. Right. Well, that's a very great advice from the Secretary General of Powerlifting India, that it has very bad repercussions on every player, as everybody knows, but some people just ignore the consequences. I got the world 3 medals, in 1982 bronze medal, 1984 bronze medal, and 1986 silver medal. The 3 times checked my samples. But it came all clear. That's so great to know, sir. It was an honor talking to you today. And one last question: where do you see the powerlifting future in 10 years in India, in upcoming 10 years? Last 10 years is too much improvement. We technically too much improved powerlifting. Technically means all computerized, fully computerized. At any time we will get all the result, all the participants' name, their ID proofs, everything will get it from in the system. The same system is now working in the world. Okay. We developed some systems that also we are using the world channel. आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र स्टेट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर संजीवन भास्करन सर, जिन्हें उनके प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वेलकम टू छत्रपति संभाजी नगर। थैंक यू। आज यहाँ इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है चैंपियनशिप का, व्हाट आर यू फीलिंग? क्या आप सोच रहे हैं कि आज यहाँ जितने भी प्लेयर्स खेल के जाएंगे, क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जाएंगे? ये जो स्टेडियम है प्लेयर लोग के लिए बहुत बढ़िया है, और महाराष्ट्र जो टीम है अनबीटन टीम है, तो इसके लिए मेरे को गर्व है। यंगस्टर्स है, उनको देख के सीखना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स का जी एज है 70 प्लस का भी एज है,
तो यंगस्टर्स है उनको आज का जनरेशन में उनको देख के मीन्स ये होना चाहिए कि गर्व से कि हमारा पिताजी भी इसमें कम्पीट कर रहा है, वो भी ये देख के सीख के अपना 100% देना है। दैट्स ग्रेट सर। आप क्योंकि खुद एक मेंटोर रह चुके हैं इस पूरे स्पोर्ट में, तो आज यहाँ पे जो चैंपियनशिप हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मास्टर एथलीट्स हैं, जिनका एक वर्क लाइफ अलग होता है, फैमिली लाइफ है और एक स्पोर्ट लाइफ है, तो ये तीनों साथ में संभालते हुए क्या आपको लगता है कि जो यंगस्टर प्लेयर है और मास्टर प्लेयर है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है क्योंकि यंगस्टर्स तो क्या है आज के तारीख में सब मोबाइल के पीछे लगा हुआ है। जी जो मास्टर जनरेशन में उनका इतना लगाव नहीं है। अगर आज के तारीख में जो डोपिंग डोपिंग होता है वो अवॉइड करके इन लोग खेल रहा है, ताकि क्या हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। यंगस्टर्स में क्या होता है कि उनका जो हेल्थ वाइज है उस टाइम रिकवर हो जाता है, मगर ओल्ड एज वाले को जो जल्दी रिकवर नहीं होता उनको किडनी फेलियर या कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा डर के मारे ज़्यादा डोपिंग नहीं लेते हैं मास्टर्स में। अपना फैमिली डॉक्टर के साथ एडवाइस लेके ही करेगा तो 101% अपन सक्सेस होएगा। और जो प्लेयर इंस्टेंट करना चाहता है वो कुछ नहीं होएगा, कम से कम 5 साल की भी मेहनत, तो मेरे को तो 15 साल लगा। और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत एनकरेज करता है और ओलंपिक में भी मेडल सब आने लगा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया। बेसिकली डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दे बहुत देते हैं। ज़्यादा है। सर, आपकी टाइम की जो पावर लिफ्टिंग थी और आज के टाइम में जो पावर लिफ्टिंग है, क्या इन दोनों स्पोर्ट में आपको कुछ नज़र आता है, कोई डिफरेंस नज़र आता है आपको इसमें? बहुत सारा डिफरेंस है अभी। हम लोग के टाइम में तो इक्विपमेंट्स कम थे, इक्विपमेंट्स बोले तो जो गियर है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आज के तारीख में जो बेंच प्रेस का है उनका इम्प्रूवमेंट कम से कम 10-15 वेट का डिफरेंस आता है। और स्कॉट में भी आया, हम लोग जब ये यूज़ कर रहा था वो कॉस्ट्यूम एकदम 600-700 रुपीज़ का था। अभी जो कॉस्ट्यूम आते हैं 10,000-12,000 का आता है। तो स्पोर्ट्स गियर होता है ना अपना, उसमें अपने को सपोर्ट कम से कम 50% इम्प्रूवमेंट हो जाता है। क्या है कि उस टाइम मोबाइल नहीं था तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस फोकस करना करने के पड़ता लिए है। टाइम था, राइट सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो भी एस्पायरिंग प्लेयर्स रहेंगे अभी इसके बाद इस टूर्नामेंट को देख के भी कई लोगों में पावर लिफ्टिंग प्रमोट होगा, तो ऐसे यंग प्लेयर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यंग प्लेयर्स को मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंसंट्रेट करके अपना वर्कआउट जो भी है अच्छा गाइडेंस से करने का, अच्छा कोच रखने का, अच्छा गाइडेंस करना है। आजकल बहुत सारा जिम जो ऑनलाइन ट्रेनर होता है वो अपना इम्प्रूवमेंट ऑनलाइन बताता है, फिर उनको लगता है कि हाँ चलो इसमें चला जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा भी डाइवर्ट हो गया माइंड सेट तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि मेरे टाइम में तो मैं योगा भी करते थे, 80-87 के टाइम में योगा भी करते थे। योगा में बहुत इम्प्रूवमेंट है, माइंड सेट हो जाता है। पर हम लोग के टाइम तो मैगजीन था, अभी तो आपको वीडियो सब मिल जाएगा, तो वीडियो से भी आप देख के उसको सीख सकते हैं। वाकई बहुत हेल्पफुल एडवाइस थी सर, एंड थैंक यू सो मच। इतने बड़े लेवल पे एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, एंड आप सभी ये इसे प्रमोट करें एक अच्छी तरह से, जो हम जैसे नॉन पावर लिफ्टर्स हैं उन्हें इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू मैम। यू। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री संजय सरदेसाई सर, जिन्हें महाराष्ट्र के सबसे प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड शिव छत्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए उनसे जुड़ते हैं। वेलकम टू छत्रपति संभाजीनगर सर। Thank you. इतने बड़े पैमाने पे आप इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है, कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की बागडोर आपके सामने आपके हाथों में है, तो इसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या विजन है आपका इस कंपटीशन के लिए? ये बातें हम अकेला नहीं कर रहे, मेरी पूरी टीम कर रही है, जी महाराष्ट्र की और संभाजी नगर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की सुरेश बहुले और जसवीर भाटिया, और हमारे गाइडेंस कर रहे हैं त्र्यंबक भाऊ तुपे जो माजी महापौर रह चुके हैं, उनके मार्गदर्शन के आधार से हम ये कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैच्योर्ड प्लेयर है, 40+ मास्टर्स खिलाड़ी है। पहले अपने ज़माने में वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है नेशनल इंटरनेशनल में, और वही खिलाड़ी यहाँ आके अपना प्रदर्शन कर रहा है। इस उम्र में चलने का प्रॉब्लम रहता है, कोई डायबिटीज है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब भूल के ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
इसमें हम लोग के लिए स्पॉन्सरशिप या जो भी कुछ बात है वो हम लोग को मिलती नहीं है। हमारे किस्से से पैसा जा रहा है, हम लोग जो हमारे ओन पैसा हम लोग डाल के यहाँ खेलने के लिए आते हैं, हम लोग को कुछ भी मिलता नहीं, लेकिन उसके लिए हमारा हमें कुछ दुख नहीं है या कुछ ऐसा ही नहीं। हम लोग, हमारी ये पैशन है। जी हम लोग को जो सुकून मिलता है, अभी देखो दुनिया भर से, मतलब मणिपुर से पब्लिक आया है, असम से आया है, उड़ीसा से आया है, हाँ, मेघालय से आया है। अभी ये लोग को मिलने के लिए सालों साल लगते हैं, राइट लेकिन हम लोग ये चैंपियनशिप की वजह से हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, जी वही बहुत एक उपलब्धि है। जैसे कि इस बैनर पे मैं देख पा रही हूँ सर, इन मेमोरीज ऑफ श्री जस्सी भाटिया, वहाँ पे पावर देखो लिफ्टिंग यहाँ होते जो हैं। पावर लिफ्टिंग जो जी चैंपियनशिप हो रही है, ड्यू टू ओनली जस्टिस बिकॉज कई साल पहले हम लोग, हमारी उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने पावर लिफ्टिंग के लिए दीन जान से बहुत मेहनत की है। इसके लिए आज संभाजी नगर में मिनिमम 10 तो नेशनल चैंपियन है, और एक पावर लिफ्टिंग का एक अलग माहौल बनाया उन्होंने, और उनके जो बनाया हुआ माहौल है उसकी बदौलत आप हम लोग कम से कम 4 स्टेट चैंपियनशिप और ये दूसरी नेशनल चैंपियनशिप है, और अंदाजा 800 से अधिक प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। और वैसे तो औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर ये सिटी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन एक अलग सी बात रहती है कि कोई कोई हमारे साथ बात करते हैं, पंजाब के लोग बात करते हैं कि सर औरंगाबाद में कंपटीशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग नांदेड़ जाएंगे, और भी गए कृष्णेश्वर जाना चाहते हैं, भद्रा मारुति जाना चाहते हैं, और शिरडी जाना चाहते हैं। यहाँ से नज़दीक उन लोग का कंपटीशन भी हो रहा है, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनको मेडल भी मिल रहा है, और ये सब टूरिस्ट प्लेस की वजह से और भी ज़्यादा पॉपुलर होती है। राइट इसके लिए संभाजी नगर में आने के लिए बहुत पब्लिक इंटरेस्टेड है। तो बेसिकली उनकी वजह से जो एक पावर यस, लिफ्टिंग का बेस है बेस वो आज यहाँ बन छत्रपति गया है। संभाजी नगर में हाँ, बन यस, चुका है यस। और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम आप जैसे मेंटर से मैं नहीं कर रहा हूँ, मुंबई ये संभाजी नगर के जो खिलाड़ी है, जी सर मतलब जीतू जैसा खिलाड़ी है, रविंद्र सालवे जैसा खिलाड़ी है, अजिनाथ शेखड़े जैसा खिलाड़ी है, सौरभ चकलकर कैसे खिलाड़ी है, ये जो कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद भी एक्चुअली खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद भी सिखा रहे हैं, जी ये अलग तरह से। आज हमारे सन हेल्थ क्लब है, वहाँ से ये जो प्लेयर हम लोग को मिल रहे हैं, हाँ, वो एक नई उपलब्धि है, और ये आगे चल के एकदम यंग जनरेशन है, आगे चल के 2-4 साल में ये लोग बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। और हम लोग इसके यहाँ से ओनली हम लोग नेशनल चैंपियनशिप नहीं, हम लोग इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी करने के लिए सोच रहे हैं औरंगाबाद में। मेरे जो साथी है सब, जो रविंद्र सालवे है, अजिनाथ सिकाड़े है, सुरेश बाहुले है, और जीतू भाटिया, और जॉय है, ये जो लोग है, ये जो कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, उसका ये कुछ जो मिल रहा है वो उनका मेहनत है। हम उनको मदद कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोग उनको कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद के दिल से कर रहे हैं। वो जो दिल से होती है ना चीज़, वो बहुत अलग रहती है और सबको पसंद आती है।